So, Kansal, can we start? So, very good afternoon, everyone present here. So, welcome to our presentation दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes. Presentation actually the visible, and participants have joined also. So everybody has joined it. So can I start, sir? Now. Yes. I'm ready. So, good afternoon to everyone present here. So, I, Dr. Rajkumar Arya, Associate Professor, Department of Chemical Engineering, NIT Jalandhar, welcome you again to our fourth session of the STC, Current Industrial Practices in Chemical Engineering. So, today we have with us Professor Sushil Kumar Kansal from Punjab University, Chandigarh. So let me introduce Professor Kansal to you. So we have Mr. Dr. Sushil Kumar Kansal, who is a professor with Dr. S.S. Bhatnagar University, Institute of Chemical Engineering and Technology, Chandigarh. He is enriched with over 20 years of teaching and research experience. Dr. Kansal pursued PhD in Chemical Engineering from Punjab Technical University on heterogeneous photocatalytic system for detoxification of industrial effluents. He completed his ME in Chemical Engineering from Punjab University. Dr. Kansal received the DAD Fellowship under short stay program at Institute for Technische Chemie, Kellenster, Germany in the year 2009. He was also a visiting scientist at College of Material Science at South China University of Technology, Guangzhou, China, 2008. He was also nominated as visiting scholar for Mauritius under 5th UGC TAC Consortium Agreement 2012. Dr. Kansal has several awards to his credit. He has been awarded the Srimati Premlata Jain Best Researcher Award in the year 2017 and Hiyoshi the Think of Ecology Award 2019 by Hiyoshi Corporation Japan. He also received an award of $1,100 by American Chemical Society for publishing an article in Chemical Reviews. Dr. Kansal has 111 publications in referred journals, 15 book chapters to his credit. He has over 4,053 Google Scholar citations and over 3,288 citations in Scopus. So here I would like to note here that the award which he got from the American Chemical Society for Chemical Reviews paper, it was the best paper and it was published by his four, I think, BTech students. So it was the great means the achievement for the students under Professor Kansal actually. So with this short introduction, I would like Professor Kansal to conduct the session. Over to you, sir. Thank you, Professor Arya. I am very thankful to you for giving this opportunity and introducing me very well to the participants. So good afternoon, all participants. I am very lucky that I got a chance to interact with you on some industrial aspects of pulp and paper industry. Hopefully you will
And I give this opportunity to all the participants. Wherever they feel any doubt in between my presentation, they can stop me. They can, ask any query related to the topic that we will cover. I'll try my best to answer your queries. So be comfortable, have a comfortable atmosphere in your mind, that any question, any query, whatever in your mind, maybe some silly question you can ask during the talk. So starting the talk, hopefully you will enjoy. The title is Manufacturing of Paper from Wood Agro-Based Raw Materials. So we hopefully most of the participants are engineering graduates, or maybe doing undergraduate or postgraduate, or some are researcher, some maybe from science field. So we all know that we are using paper in the form of books, in the form of notes, newspaper, cardboard, packaging material, we all know. So we should know how it is being manufactured at industrial scale. I'll cover some aspects. The industry is very big. There are many industries in chemical side, which are heavy industries, like fertilizer industry, large scale industry, you can speak fertilizer industries, pulp and paper mill, sugar industry, fertilizer industry, refineries. They are the large scale industries, not the small scale industries or medium scale industries. Large scale industries uses lot of raw materials and producing lot of high quantity, enormous quantity of the products, like pulp and paper. If I speak in Indian scenario, medium scale pulp and paper mills, they are producing maybe 50 to 100 tons of paper per day. 50 to 100 tons means 1 ton means 1000 kg. So almost 50,000 kg per day, tons per day. If we express the capacity of any chemical plant, we usually speak this much is the capacity of the industrial plant, maybe 30 tons per day. So always we give per day its production. We are not talking about the raw material, how much they are processing, but we always say the product which is coming out, okay, which is saleable, which is available in the market. So I will try to cover the aspects of pulp and paper, how we can produce paper from a raw material, how we can go from the raw material to the end product. Please, again I am saying, whatever you feel during the talk, any query or maybe any suggestion, please ask. At the end also we will give you time, no problem at all. तो डरना नहीं है, आपने पूछ लेना, चाहे वो काम का क्वेश्चन है चाहे नहीं है, नो प्रॉब्लम. Every question is worthwhile, sir, actually, and I think this is quote, or I don't know, that most foolish question is most innovative, actually. Yes, so yes, whoever yes. think that question is foolish, that is most innovative question, actually. Yeah, that I need, on which I definitely I'll work in future. So coming to the talk, I'm starting. So if you see some data, Indian pulp and paper industry has a tremendous growth potential. Sir, this PowerPoint is not running, and Not running? हाँ, ये अभी फ्रंट स्लाइड पे ही है ओनली. मेरे पास तो चल गया फर्स्ट सेकंड स्लाइड, अभी देखिए थर्ड आ गया. Can other participants see? Or is the No, problem? no, sir. No, sir. Only No, front. For, No, sir. yes, first. So only front पे है सर. So दिया जाए फिर इसका. इसको अभी देखिए. now we got it, and you can make maybe full screen. I think full screen would be may some create problem. Okay, have you seen it? Third slide. Yeah, we are on the slide number 2 actually now. Oh, that's why, no, that's why. I think in the slide mode it is not shifting. I think now. Is it okay? Now is it okay? Yeah, it's fine actually. It's visible now. Now it's okay, I think. So maybe I think you can share it as PPT. Currently you are
sharing it at a desktop or a file actually? Because this No, have the some. I have shared as a PPT. This is my PPT, Microsoft PowerPoint, Ha file. ha ha. That's fine. No, no, that's PowerPoint. But in this team, we get four options actually to share. Okay, One at the window, one at the slideshow, one in the PPT, one in browse the file something. okay. I'm just exploring. So it's Is it okay now? yeah, it's fine, sir. Our third slide. Yeah, Okay. it's going So well. good. So Indian pulp and paper industry, if you see, uh, it has a great, tremendous, growth potential, which is currently estimated at 7% per annum. And we have almost 750 plus industries in India, having installed capacity of 12.7 million tons. And if you see the Indian Punjab scenario, only 75 paper mills are there. So everybody, we all know that paper is being made from wood. Ideal material is what? Lakdi. We all know that the wood as a raw material is difficult because you cannot cut the trees for the production of paper, especially in the region in which northern region of this country, only Himachal Pradesh and wood can be cut paper or maybe board. So we have to look for the other material. The basic raw material for paper is cellulose. Everybody knows. Bad network quality. Non-woody materials we have to explore. There are non-woody raw materials available that contains cellulose. We need cellulose, so we can explore, we can use those non-woody raw materials. I will come in detail about those raw materials. Sir, Non-wood based. excuse me, sir. Hello. This actually, I think, due to the network problem, this PowerPoint is not moving actually, and the voice is also breaking. So, I'm shifting. I'm shifting my place actually. I'm okay, shifting. sir. Okay, sir. No problem. अभी देखिएगा थोड़ा सा मैंने शिफ्ट किया है प्लेस. Yeah, now the sound quality is very good actually. अच्छा है sir. टॉक सुनिए आगे तो कोई दिक्कत आई नहीं है. I think problem will be solved. जी ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. We are at the slide number 3 now. Yes. So non-woody paper mills that contribute over 70% of total country's production, which manufacture eco-friendly paper. ये अभी स्लाइड आप देख लीजिए, मैं आपको सारा बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इको-फ्रेंडली पेपर, which can be produced from wheat straw, rice straw, bagasse, sarkanda, etc.
Otherwise, waste and waste paper as such converting waste into wealth and conserving forest resources to an extent to 20 million per year. Hello? ठीक है सर? Hello? Yes, sir. Yes. See the per capita consumption of paper of various industries. You see, content-wise, continent-wise, world-wise, it is 55 kg per capita paper consumption. And Asian contribution is in Asia, its per capita consumption is 45. If you will see the second column of this diagram, that is emerging countries. In China it is 76 and in India only 13 kg per capita consumption means per person per year. तो हमारा तो इतना ही यूज हो रहा है. In the developed country you see UK is 135, whereas US it is 270, and India ranks 15th among the paper producing countries of the world. सबसे ज्यादा अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है, फिर चाइना करता है, जापान काफी कर रहा है, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कुछ कर रहे हैं. So if you see the structure of Indian paper industry, we have wood based industries, we have agro based industries, we have recycle fiber based industries. If you see, wood based industries are only 30. Large scale industries, which large scale industry जैसे कि आपका बलारपुर इंडस्ट्रीज है, बिल्ट का प्लांट है, सेंचुरी पेपर मिल है लाल कुआं में उत्तर प्रदेश में, एंड ITC भद्राचलम का बहुत बड़ा प्लांट है. ऐसे लार्ज इंडस्ट्री, लार्ज ग्रुप हैविंग कैपेसिटी, जैसे 30 जो हम बात कर रहे हैं वुड बेस्ड लार्ज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री हैविंग कैपेसिटी, यू कैन सी द डेटा, एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर ऑलमोस्ट 150. ओके. Among the top producers of paper, India ranks at 20th position now. Earlier it was 15 with an estimate production of 10.9 metric ton per annum. Indian sector accounts for about 2.6% of the global production, estimated at 390 million ton per annum. In 2012, India recorded paper consumption of 9.3 kg per capita versus global average of 58 kg per capita. So I have already told there are 759 pulp and paper mills with this capacity. This is the latest data of 2014. And Indian paper industry ranks 6th among the energy intensive industry with an energy requirement of about 10 million ton per annum of coal and 10.6 gigawatt hour of electricity. Now coming to the paper production from the different raw materials. If we classify the raw materials, we can classify it as wood materials, woody, non-woody, agriculture residues, and recycled paper. Now we all know that wood is of two types. One is softwood, one is hardwood. Softwood आपको जो कहते हैं कोल्ड रीजन में ही मिलेगी, हिमालयाज में पहाड़ी एरिया पे ही मिलेगी सॉफ्टवुड, वेयर इज हार्डवुड हमारे प्लेन एरियाज में मिलेगी. इन एंड अराउंड यू आपका वुड जो ट्रीज हैं दैट इज ऑफ हार्डवुड. सीसम है, यूकलिप्टस है, नीम है, मैंगो ट्री है, ऑल आर हार्डवुड. वेयर इज सॉफ्टवुड जैसे आपकी सैंडलवुड है दैट इज सॉफ्टवुड, टीक है. सो नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स आर सरकंडा, बैम्बू. जैसे सरकंडा मुझे याद है, कई लोगों को याद होगा कि पहले ज़माने में हम हाथ से एक पेंसिल होती थी लकड़ी की, वो सरकंडा की होती थी नॉर्मली या बैम्बू की, उससे हम अपना होमवर्क लिखते थे घर में. सरकंडा, बैम्बू, सबाई ग्रास, काही ग्रास, कांग्रेस ग्रास, और ग्रासेस यू कैन स्पीक. Some agriculture residues everybody know in Punjab, Haryana, you can easily have idea about the various agricultural residues like wheat straw, rice straw, bagasse, cotton stalks, and other residues of various agricultural produce. And the best source for paper manufacturing is the itself paper. We can speak recycled. Recycled paper is a very good source. So we are talking about the sources for paper manufacturing, sources of raw materials for paper manufacturing. So paper can be manufactured from wood, paper can be manufactured from non-wood, paper can be manufactured from agriculture residue, or itself paper we can recycle, and this is the best source. That's why always whenever we are talking about the
पेपर मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट 3 जो है नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, वुड स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्स है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो पेपर है इसको रिसाइकल कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो रिफाइंड फॉर्म में सेलुलोज है, पेपर इज ए सेलुलोज, केमिकल नेम जो केमिकल इंग्रेडिएंट है पेपर में दैट इज सेलुलोज। मेरी आवाज आ रही है सबको? एक पार्टिसिपेंट बता दे। Yes, sir, we can hear you. Sir, you We can can hear you, and I in this because you said the sesame can also be used for paper, but it's very hard wood material, right? It's very tough to No. process, I think. No, it's not. It is not that hardwood mean that is very hard. Yeah. I will tell you. I will tell you with respect to time. Okay, fine. In terms of we differentiate hardwood and soft length of fiber, diameter of fiber. Okay. Oh, that way. Length of fiber is of softwood is more. The length of जितना length of fiber ज़्यादा होगा उतना ही हमारा strength ज़्यादा होगा पेपर का. Okay. So that's why softwood is always preferred, but in India there is no softwood. You cannot get softwood. Scandinavian countries and New Zealand, Australia, we are importing softwood pulp from these countries. Finland में बहुत ज़्यादा है softwood. ये Scandinavian countries हैं जो. तो हमारे देश में हार्डवुड है. हार्डवुड भी हम नहीं करते, तो या तो खेती करें, we sow this type of wood and then we cut. If you see, take the example of this Yamuna Nagar, there is a plant, very big plant of built Bilarpur Industries Limited का plant है. In and around that area, lot of eucalyptus is there. तो eucalyptus से वो पेपर बना रहे हैं. तो नॉन वुडी रॉ मटेरियल पंजाब में देखेंगे मोस्टली इंडस्ट्री दे आर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. जो आपके पास ABC पेपर मिल है, ये होशियारपुर में के पास है. देन श्रेयांश पेपर मिल है अहमदगढ़, और आपके अमृतसर में है बड़ा अच्छा ग्रुप JK पेपर का है इन एंड राउंड. तो ये ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वुड वी आर यूटिलाइजिंग नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स, वी आर यूटिलाइजिंग एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज. I will discuss in detail. Fine. So these are the raw materials available. You can see the pictures. Just I have mentioned a few raw materials. Wood trunks. Okay. Recycled paper is the source. Straw means जब आपने देखा होगा पंजाब में, हरियाणा में जो लोग हैं, जितनी पार्टिसिपेंट इसमें हैं, जो they belong to these state. You can easily see. नहीं तो सिंपल सा है, घर में फ्रूट का, कई बार हमारे घर में टोकरी आ जाती है फ्रूट का, उसके नीचे जो फाइबर येलो शेप फाइबर लगे होते हैं दैट इज ए स्ट्रॉ. दैट इज राइस स्ट्रॉ. जो अभी आपने देखा होगा कभी, जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, काऊ है, बफलो है, व्हाट दे ईट व्हीट स्ट्रॉ. पंजाबी में इसको तूड़ी भी कहते हैं, तूड़ी. ठीक है. दैट इज ए बाई प्रोडक्ट और यू कैन ए रेजिड्यू ऑफ व्हीट प्लांट. कनक का जब कनक निकाल ली जाती है, जो पीछे रह जाता है दैट इज नोन एज व्हीट स्ट्रॉ. वेयर एज व्हेन चावल निकाल लिया जाता है, पैडी हार्वेस्टिंग होती है, पैडी हार्वेस्टिंग के बाद जो बचता है दैट इज नोन एज राइस स्ट्रॉ. एवरीबडी नो देयर इज ए ह्यू एंड क्राई अबाउट द फार्मर्स, दे आर जस्ट बर्निंग रेजिड्यूज ऑफ दिस पैडी प्लांट आफ्टर हार्वेस्टिंग. That is rice straw. So that straw is a cellulose. That is a cellulose. It's a good source of paper manufacturing. We can do, but there is a difference. There is a difference between wheat straw and rice straw. Rice straw and wheat straw. Please try to understand. Wheat straw is completely, किसान कभी जलाता नहीं अपने किसान को, जब कनक निकालता है उसके बाद उसको कोई बिल्कुल मैदान को बिल्कुल साफ कर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है, बिकॉज व्हीट स्ट्रॉ से पेपर बनता है. व्हीट स्ट्रॉ उसका एक फीड है फॉर देयर एनिमल्स. लेकिन वेयर एज राइस स्ट्रॉ को वो जलाता है. क्यों जलाता है? क्योंकि राइस स्ट्रॉ कम यूज हो रहा है, पशु नहीं खाते उसको. खा तो लेते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता. इट इज नॉट इजिली डाइजेस्टेबल बाय द एनिमल बिकॉज there is lot of silica content in the rice straw as compared to wheat straw. We all know that silica is non-digestible. That's why जो rice straw है उसको
पशुओं के खाने के लिए नहीं यूज करते हैं तो पशु थोड़े दिन के बाद बीमार हो जाते हैं। Similarly, same silica problem, why we can't use rice straw as a raw material for paper? Because this silica causes lot of problems during the processing of material. मैं शायद वक्त के साथ पूरा बताऊंगा। जब जो ब्लैक लिक्विड जनरेट होता है ड्यूरिंग पल्पिंग, उसको हम जब प्रोसेस करते हैं तो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर ट्रेन यूज होता है। 6 इफेक्ट इवेपोरेटर ट्रेन चलता है उसके लिए, 6 इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर की ट्यूब्स को अंदर सिलिका प्रेसिपिटेट हो जाता है, जम जाता है। उससे क्या है कि वो ट्यूब्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चोक हो जाती है। दैट्स व्हाई राइस स्ट्रॉ जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है कि हाउ वी कैन सेपरेट सिलिका फ्रॉम द राइस स्ट्रॉ, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट सिलिका। इज a very good chemical that can be utilized in many applications. So we have a good research topic, how we can extract silica from this cellulose material, this biomass. This is a biomass, this is energy. सिलिका एक्सट्रैक्ट कर लें, बाकी का सेलुलोज हेमी सेलुलोज सेपरेट कर लें। सेलुलोज इटसेल्फ इज ए गुड रॉ मटेरियल फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। हेमी सेलुलोज वैल्यू एडेड केमिकल्स का आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है। कन्वर्शन ऑफ बायोमास इनटू वैल्यू एडेड केमिकल्स लाइक यू। हेलो, हाँ जी, कोई दिक्कत आ रही है? Hello, sir. हाँ जी, This PowerPoint is not there actually. Where has this? Sir, please you can minimize the screen so that we can see the PPT. Which आपकी screen? तरफ से हो गया सर? Okay. ठीक है, हो गया जी? Is it visible? Yes, sir, visible. So I was talking about the value-added chemicals. Lot of research, recent research topics. This is a recent research topic that how we can use this biomass to produce value-added chemicals. My 2 students are doing their research in this area. How we can utilize this hemicellulose, this lignin. मैं बताता हूँ अभी आगे और अब आप नोट करते जाइएगा, जो भी आपके मन में कोई शंकाएं हो तो मैं दूर करूंगा। So if you see the average composition of softwood, this slide gives the composition of softwood. भाई लकड़ी किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, लिग्निन की, और कुछ परसेंट 4-5% एक्सट्रैक्टिव्स होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ प्लांट में से वो कहते हैं ना गोंद निकलती है, कई बार हम इकट्ठी कर लेते थे छोटे होते तो, उसको यूज कर लेते एज ए बाइंडर करते ना, तो ये एक्सट्रैक्टिव है उसका। तो वो 0.45% एक्सट्रैक्टिव होते हैं। सेलुलोज फाइबर होते हैं, हेमी सेलुलोज। दिस वुड इज ए फाइबरस मटेरियल, पेपर इज ए फाइबरस मटेरियल। सो वी हैव टू प्रोड्यूस पेपर फ्रॉम दिस फाइबरस मटेरियल, दैट इज वुड। ऐसे ही ये प्लीज एक स्लाइड जस्ट आप पढ़ लीजिएगा, मैं फिर डिस्कस करता हूँ। पढ़िए अपने आप, मैं पढ़ूंगा तो अच्छा नहीं लगता। Largest non-wood based fiber producer is China, followed by India and Thailand. Agro-based fiber is well suited for small-scale industry because of its low capital investment. This I have taken this data from the report which has been submitted to the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India. Usually 3 categories of non-wood fibers are used. Crops, देखो hemp को as a crop लिया जाता है, नीफ को, फ्लाक्स को, जूट इंडिया में बहुत होता है। एग्रीकल्चर रेजिड्यू की मैं बात कर ली। वाइल्ड प्लांट्स जैसे ग्रासेस है, सबाई ग्रास है, एलिफेंट ग्रास है, बैम्बू है, सीवीड। तो ये भी एक अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। बेगास पता है क्या होती है? बेगास होती है जब हम गन्ना खाते हैं, शुगर केन,
गन्ना खाने के बाद जो पीछे बच जाता है पोर्शन, जो चबा के हम गिरा देते हैं, जूस हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी सॉलिड पोर्शन जो गिराते हैं, दैट इज नोन एज बगासे और बगास. एंड व्हीट स्ट्रॉ आर द टू मेजर एग्रो बेस्ड raw material used by the paper industry in India. Both these raw materials are available in plenty. गन्ना बहुत हो रहा है यूपी में, लॉट ऑफ. अच्छा, अभी कुछ इंडस्ट्रीज आप देखेंगे, दिस बगासे इज बीइंग यूटिलाइज्ड एज ए फ्यूल टू प्रोड्यूस स्टीम एंड एनर्जी. ठीक है, अगली लाइन में पढ़ेंगे द एग्रो रेजिड्यूज कंटेन लोअर लिग्निन. मैं बताऊंगा क्या फायदा होगा इसका. हायर सिलिका एंड ऐश. राइस स्ट्रॉ में 10-12% तक सिलिका होता है. तो ये भी एक रिसर्च टॉपिक है. आप कोई बच्चे काम कर सकते हैं कि मैं सिलिका एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. फाइबर फ्रॉम बेगास एंड स्ट्रॉ जनरली रिजल्ट्स इन लो ग्रेड पल्प. क्यों? बिकॉज द फाइबर लेंथ ऑफ दिस नॉन वुडी इज लेस. That's why it is low grade pulp, we can say. Whereas hemp, neep, cotton and flax. Cotton is the ideal material for paper making. Ideal material है. लेकिन कहाँ है हमारे पास cotton? Can we have capacity to produce paper from cotton? No. ठीक है जी. So अच्छा क्वालिटी सिगरेट पेपर है, बैंक नोट है, हाई क्वालिटी के पल्प पेपर से पेपर होता है जो सिगरेट पेपर है. अच्छा, इफ आई आस्क वन प्रॉपर्टी ऑफ सिगरेट पेपर, कौन सी बेस्ट क्वालिटी, केमिकल इंजीनियर बता सकते हैं मुझे कौन सी बेस्ट प्रॉपर्टी है जो सिगरेट पेपर में होनी चाहिए? एनी वन, प्लीज यूज योर कॉमन सेंस एंड टेल मी. तो बता सकता है पार्टिसिपेंट? Actually, but I can understand that it should not catch fire immediately, and it should proceed the fires not in the flame. It should just burn only. Yes, Which this is very, you are close. The exact chemical property, if I speak, that is porosity. Porosity is very, very important. Right, right. So if you see this slide shows the fiber source of Indian paper industry. Just note the data. Just I want to give some data. One participant said the high tensile strength also. No, high tensile. Some not in this. Actually, if I ask about you currency paper, भाई जो नोट है इसमें बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? इसमें बेस्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए फोल्डिंग एंड्योरेंस. ये सबसे ज्यादा फोल्ड होता है और पानी अब्सॉर्ब करेगा. डबल. हाँ जी, डबल फोल्ड सर. हाँ, फोल्डिंग एंड्योरेंस वो प्रॉपर्टी बोलते हैं केमिकली. यदि हम कहें बर्स्टिंग स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू द मटेरियल व्हिच इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर पैकेजिंग. ओके, सो मैनी ग्रेड्स ऑफ पेपर. मैं उसकी बात नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा लेक्चर उधर चला जाएगा कि कितने ग्रेड्स हैं. 100 ग्रेड्स ऑफ पेपर इन मार्केट. कोटेड पेपर है, नॉन कोटेड पेपर है, ववन पेपर है. ठीक है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे जब सर दोबारा चांस देंगे मुझे. You are always welcome, sir. If you see this table, ये एक फिगर है, बहुत अच्छी फिगर है. आराम से सोचो, सुनो. मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा. आप कोई भी कुछ भी पूछ लें, यहीं इसमें से पूछ लें मेरे को. ये मैंने नीचे रेफरेंस भी दिया हुआ है, ये बुक का चैप्टर है, यहाँ से खुला जा सकता है. तो इसमें देखो बैम्बू की फाइबर लेंथ कितनी है, जो फर्स्ट सेकंड कॉलम है. सेकंड कॉलम पे ध्यान दें. रीड एक रॉ मटेरियल. चलो बगासे की बात करें. बगास है, राइस स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ है, कॉर्न स्टार्च. कॉर्न स्टार्च क्या होता है? जो हम कॉटन का प्लांट लगाते हैं ना, कॉटन तो ऊपर आ जाती है, नीचे का जो प्लांट है उसको स्टाल्क कहते हैं, कॉटन स्टाल. छटियाँ पंजाबी में कहते हैं, यदि कोई पंजाबी लोग इधर बैठे होंगे. इसको फ्यूल घरों में एज ए फ्यूल यूज करते हैं, एज ए फ्यूल यूज होती है कॉटन स्टाल. तो आप देखें फाइबर लेंथ कितनी है. जितना फाइबर लेंथ ज़्यादा होगा ना, उतना फायदा होगा, उतना पेपर की स्ट्रेंथ ज़्यादा बन जाएगी. जो टेंसिल स्ट्रेंथ की अभी बात की थी किसी, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, अब सेलुलोज कंटेंट का 1 2 3 4th कॉलम देख लिए, 5th कॉलम देखिए. जैसे मैंने बताया था कि वुड या कोई भी रॉ मटेरियल, या मैं ऐसे कह दूं जो स्ट्रॉ है, उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट है? उसमें सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, लिग्निन है और एक्सट्रैक्टिव्स हैं. तो यहाँ जो रेंज दिखा रखी है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन की लिखा रखी है. अब थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये लिग्निन है ना, एक बाइंडिंग फोर्स है.
देखो जो ट्री खड़ा होता है ना, यदि लिग्निन ना हो तो ट्री खड़ा नहीं हो सकता। लिग्निन इज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द फाइबर्स। तो ये बंडल ऑफ फाइबर है जो लॉग ऑफ अंदर फाइबर्स हैं, जो उसके अंदर फाइबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में, सेलुलोज हेमी सेलुलोज की, सेलुलोज हेमी सेलुलोज। तो लिग्निन कितने परसेंट रहता है? यदि मैं व्हीट स्टॉक की बात करूं, नीचे से सेकंड रो देखें, व्हीट स्टॉक का डेटा देखें, सेलुलोज है 29 से 35%, 29 to 35%, वेयर इज हेमी सेलुलोज इट इज 26 to 32%, वेयर इज लिग्निन इट इज अबाउट 20%। सो कहने का भाव ये है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज इज द रिक्वायर्ड मटेरियल। I have told you that cellulose is the required material. सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के मिश्रण को, जोड़ को कहते हैं होलो सेलुलोज। तो होलो सेलुलोज हमें चाहिए पेपर बनाने के लिए। लिग्निन क्या है? एक बाइंडिंग फोर्स है। अब देखो ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो वुड ऑफ लॉग है, जो लॉग ऑफ वुड है, वो बंडल ऑफ फाइबर्स है, जुड़े हुए फाइबर। जब पेपर बनाना है हमने, तो वो फाइबर्स को इंडिविजुअल फाइबर्स में कन्वर्ट करना है, सो दैट इंडिविजुअल फाइबर्स कैन बी formed in a sheet form, so that paper can be manufactured, sheet can be manufactured। तो कहने का भाव ये है कि बंडल ऑफ फाइबर्स को तोड़ना है। एक तरीका ये है, तोड़ना क्या है आगे थोड़ा सा और ज्यादा बताऊं, पर यही कॉन्सेंट्रेट करो इस स्लाइड के ऊपर ही, कि सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज हमें रिक्वायर्ड है। लिग्निन इज ए कलरिंग कंपाउंड, जो ये भी केमिकल है, ये पॉलीमर है। सेलुलोज इज ए पॉलीमर, पेपर इज ए पॉलीमर, लॉन्ग चेन सेलुलोज की बनी रहती है। लिग्निन इज ए लॉन्ग चेन हाई मॉलिक्यूलर वेट केमिकल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉलीमर है ये। तो ये लिग्निन क्या है? ये इसका कलर है। आप देखो, पेपर शीट तो आपको व्हाइट चाहिए, व्हाइट पेपर चाहिए ना, तो हमें, और दूसरा हमें इंडिविजुअल फाइबर चाहिए। तो लिग्निन हमें इसमें से निकालना होगा। या एक तरीका ये है कि मैकेनिकली इस लकड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दो, फाइबर फाइबर अकेले अकेले कर दो, छील दो इसको। एक तरीका वो भी है फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में दो मेजर सेक्शन होते हैं, एक पल्प होता है, एक पेपर होता है। शीट फॉर्मेशन दूसरे को कहते हैं। पल्प बनाना मतलब लॉग ऑफ वुड को, जैसे घर में फ्रूट पल्प होता है, ऐसे ही ये, जैसे हम एक कागज ले लें ना, कागज को कई बार छोटे होते हैं हम खा लेते थे, स्वाद लगता था हमें, तो जब खा के मुंह में हम उसको एक मास सा डेवलप कर लेते हैं, दैट इज पल्प। ओके, तो पहले वुड से हम वो पल्प बनाना है, फिर वो पल्प को शीट फॉर्मेशन में लेके आना है। मैं बताऊंगा यदि आज आपका पूरा इंटरेस्ट बना रहा तो। ठीक है जी, ये अब मैं यहाँ तक खत्म करता हूँ रॉ मटेरियल्स के बारे में। अब मैं इंडस्ट्री शुरू करूंगा कि व्हाट इज द प्रोसेस। देखो ये सिंपल स्लाइड बता रही है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस स्लाइड? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पल्प एंड पेपर। ओनली देखो 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं। वुड से पल्पिंग कर ली, पल्पिंग से ब्लीचिंग कर ली, ब्लीचिंग से पेपर मशीन पे ले आए और पेपर बन गया। लेकिन ये काफी बड़ी इंडस्ट्री होती है। इफ यू विल विजिट पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, आपको पूरा दिन लग जाएगा सारे सेक्शंस को देखने के लिए, मिनिमम 1 डे। तो ये आपने स्टेप्स देख लेने हैं। आई विल एक्सप्लेन द इंडिविजुअल स्टेप्स इन ब्रीफ, बिकॉज दिस पल्प एंड पेपर मिल का जो पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, इसका एक अंडर ग्रेजुएट होता है आईआईटी रुड़की में, फुल फ्लैश देयर इज वन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बी इन पल्प एंड पेपर मिल, लाइक बी इन शुगर इंडस्ट्री, शुगर। So industry is big. I will try to cover the basic steps of this industry, how we can produce paper. So we suppose we have a wood, or we can speak we have your wheat straw, तूड़ी है आपके पास, उससे कैसे पेपर बनाना है। अब ये तो हमने सीख लिया that wood is made of 3 components, cellulose, hemicellulose and lignin and extractive। तो हमने लिग्निन रिमूव करना है, सो दैट इंडिविजुअल फाइबर हमारे पास सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के मिल जाए। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहां तक, एनी पार्टिसिपेंट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।
Otherwise, I will continue. So no doubt. Okay, I am moving further. It's actually going very interesting actually, sir. So it's Okay, good. okay. Thank you. हाँ, ये So, बहुत ही अच्छे वे में चल रहा है, बहुत ही इंटरेक्टिंग वे में, एंड वेरी गुड बना है। ओके। सो ये शीट को आप ध्यान से 5 मिनट लगाएंगे इस शीट को पढ़ने में, एक एक कंटेंट पढ़ लें। मैं एक एक बता सकता हूं यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, जस्ट पढ़िए। देखो, रॉ मटेरियल, सपोज यू हैव व्हीट स्टॉक और यू हैव वुड, नो प्रॉब्लम, यू हैव लकड़ी। तो पहले रॉ मटेरियल को हम प्रिपेयर करते हैं, फिर पल्पिंग करते हैं, पल्प बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। पल्प के बाद जो वो पल्प बनता है उसमें थोड़ा सा कलर रह जाता है लिग्निन की वजह से, तो फिर उसको हम ब्लीच करते हैं। जैसे मार्केट में हम ललारी के पास जाते हैं, हमारा दुपट्टे को रंग दिलवाने के लिए पहले उसमें से मैल निकालता है। सिमिलरली यहाँ भी हमने पेपर शीट बनाने से पहले उस पल्प से जो उसका थोड़ा बहुत कलर रह गया आफ्टर पल्पिंग, मैं बताऊंगा डिटेल में क्यों रहता है, उसको हम ब्लीच करना होता है। अब ब्लीच के बाद उस पल्प को हम तैयार करते हैं कि भाई हमने सिगरेट पेपर बनाना है, या हमने बॉन्ड पेपर बनाना है, या हमने कलर्ड पेपर बनाना है, किस टाइप का पेपर बनाना है। उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए, उस पल्प की प्रॉपर्टीज को डिजायर्ड प्रॉपर्टीज में चेंज करने के लिए हम स्टॉक प्रिपरेशन, इस सेक्शन का नाम ही स्टॉक प्रिपरेशन रखा है, वहां देते हैं। उसके बाद जब मटेरियल तैयार हो जाता है, पल्प रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज का तैयार हो जाता है, फिर हम उसको शीट फॉर्मेशन में लेके जाते हैं, यहाँ जिसको हम कहते हैं पेपर में शीट। सो दीज आर द 5 स्टेप्स बाय विच वी कैन प्रोड्यूस पेपर। ये जो नीचे वाले स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, इवेपोरेटर, रिकवरी फर्नेस, ग्रीन लिक्विड टैंक, पास्चराइजेशन, लाइन, ये मैं नहीं आज डिस्कस कर पाऊंगा। इट इज ए बिग एरिया एंड इट मे टेक 2 आवर्स टू एक्सप्लेन। मैं कर सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी भी पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा, या एंड पे ही बता दूंगा कि क्या चीज होती है सर ये। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज रॉ मटेरियल प्रिपरेशन। आई टेल यू, सपोज यू हैव ए बगासे, आपने बगासे से पेपर बनाना है। बगासे पता चल गया क्या है, या व्हीट स्ट्रॉ से बनाना है या लकड़ी से बनाना है। अब जब आपने लकड़ी काट ली, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम बार्क कहते हैं, सक कहते हैं पंजाबी में, हिंदी में मुझे पता नहीं है, सर बता देंगे कि हिंदी में उस आउटर लेयर को क्या कहते हैं, जो उतर जाती है, उसको कहते हैं बार्क। तो डी बार्किंग इज द फर्स्ट ऑपरेशन व्हेन यू विल यूज ए वुड। यदि आपने बगासे करना है, बगासे यूज करना है, बगासे में आप देखोगे कि अंदर एक बहुत ही हल्का सा पोरस सा मटेरियल होता है, वाइट सा, दैट इज नोन एज पिथ, PITH, पिथ। इसमें भी दिखाया हुआ वेस्ट बायोमास, डस्ट, पिथ, बार्क। यहाँ डस्ट भी हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पिथ भी रिमूव कर देते हैं, और बार्क भी रिमूव करते हैं। बार्क इसलिए रिमूव करते हैं, बार्क इज नॉन फाइब्रस मटेरियल, वी नीड फाइब्रस मटेरियल, दैट्स व्हाई वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द वुड लॉग। ओके, सो यहाँ से हम रॉ मटेरियल प्रेपरेशन में क्या करते हैं, लॉग ऑफ वुड ले लिया भाई, इतना मोटा तो प्रोसेस नहीं हो सकता, उसके छोटे छोटे ना चिप्स बनाते हैं, जैसे आप अंकल चिप्स खाते हो, 1 इंच to 1.5 इंच साइज, 25 से 50 mm का छोटे छोटे टुकड़े काट ले जाते हैं, उसको कहते हैं चिपिंग। चिपिंग ही ऑपरेशन का नाम है। चिपिंग में छोटे छोटे उस लॉग ऑफ वुड को काट लिया जाता है, दैट बिकम्स स्मॉल स्मॉल चिप्स। चिप्स ही बोला जाता है उसको, इंडस्ट्रियल टर्म में चिपिंग, एंड द ऑपरेशन इज नोन एज चिपिंग। छोटा छोटा काट लिया, जैसे आई ऑलवेज, मेरे दिमाग में एक सिंपल सा आइडिया आता है कि भाई सपोज कर लो आपको आलू की सब्जी बनानी है, पल्पिंग इज, मैंने उसके साथ रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज यू हैव टू प्रिपेयर पोटैटो वेजिटेबल, तो आलू का आउटर लेयर पहले रिमूव करते हो, यस करते हैं, फिर उसको काटते हैं छोटे छोटे पीसेस में, काटते हैं। ऐसे ही वुड लॉग को आउटर लेयर रिमूव करने के बाद छोटे छोटे चिप्स में, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, आलू को धोते भी हैं। सिमिलरली हेयर, यहाँ पे भी क्लीनिंग होती है रॉ मटेरियल की, आइदर वेट क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड आई कैन टेल यू इन डिटेल, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू इन डिटेल। तो धो लिया वहां पे भी। अब क्या करते हो आप, गैस के ऊपर कुकर रख लेते हो,
इंडस्ट्री में भी पल्पर को जब हम वुड को प्रोसेस करते हैं वहां भी उसको कुकर ही बोलते हैं, डाइजेस्टर बोलते हैं। तो व्हाट यू डू, washed potato chips you put in the cooker along with water and some masala, haldi, namak, mirch masala, है ना। Similarly here also you have to digest those wood chips. Very similar, that process is very similar to your home vegetable cooking, very similar। समझने के लिए जो आदमी मेरा आज लेक्चर ये सुन लेगा जिंदगी भर भूलेगा नहीं। यू कैन वेल अश्योर आफ्टर द एंड ऑफ दिस टॉक के सर हाँ भूलेंगे नहीं। जैसे वहां चिप्स डाले हमने, छोटे छोटे आलू के टुकड़े उसमें डाल दिए, पानी डाल दिया, मसाले डाल दिए और कुकर बंद कर दिया, नीचे से गैस को चला दिया, हीट दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इट विल बी डाइजेस्टेड। सिमिलरली हियर द वुड चिप्स और यू कैन से व्हीट स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ को आप वो तो चिप्स फॉर्म में मिलती है, वो छोटी छोटी फॉर्म में मिल रही है, अवेलेबल, किसान दे रहा है आपको डायरेक्ट। उसकी कई बार यदि उसमें मिट्टी ज़्यादा हो, डस्ट हो, तो क्लीनिंग करते हैं, आइदर वेट क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग, उसके बाद उसको डाइजेस्टर में लेके आते हैं। अब डाइजेस्टर कुकर सेम चीज़ है, कुकर वही कुकर है, इंडस्ट्री में सिमिलर कुकर है। भाई देखो, एज ए केमिकल इंजीनियर यू आर वेल नोन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, वन इज कॉन्टिन्यूस, अनदर इज बैच प्रोसेस। तो पेपर पल्प है जो दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन बैच प्रोसेस as well as in continuous fashion. So digesters are of two types, one are batch digester and continuous digester. I am talking about batch digester. Continuous digesters are there in the market and most of the industry they have installed a continuous digester. एक साइड से वुड के चिप्स डाल दिए जाते हैं, दूसरी साइड से पल्प मिल जाता है। Where is in the batch process, everybody know there is certain time period. After that time you get pulp. तो मैं वहीं पे लेके आ रहा हूँ, उसी कुकर के ऊपर लेके आ रहा हूँ आपको। कुकर में क्या करते हैं हम, इन इंडस्ट्रियल कुकर, इन इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर जहाँ पे हम पल्प बनाते हैं, वी पुट फाइबर, वी पुट वुड चिप्स और मे बी व्हीट स्ट्रॉ, एंड देन वी पुट सम वाटर, वी पुट सम केमिकल। विच केमिकल आई विल टेल। देयर आर processes of pulping. There are different types of pulping methods. One is mechanical method, another is chemical method, third one is a combination of chemical and mechanical process. Clear? Mechanical pulping बहुत इजी है समझना। चक्कू लगाने वाला आता है ना घर में, नाइफ कई बार खराब हो जाता है तो वो घर में आता है, एक व्हील चलाता है, व्हील के आगे उस नाइफ को रख देता है और वो नाइफ है वो ड्यू टू फ्रिक्शन उसका मटेरियल आगे वाली लेयर रिमूव हो जाती है और वो तीखा हो जाता है। ऐसे ही इंडस्ट्री में करते हैं। जो न्यूज़ प्रिंट है ना, जो अखबार आता है, वो मैकेनिकल पल्प से बना होता है। इस पल्पिंग मेथड का फायदा क्या है कि यील्ड आइडली 100% कहते हैं। कैसे करते हैं, उसी जैसे चक्कू को उस व्हील के आगे लेके जाते हैं, ऐसे लॉग ऑफ वुड को एक हाई स्पीड ग्राइंडर चल रहा होता है उसके आगे ले जाते हैं, तो ऊपर से पानी स्प्रे कर दिया जाता है, तो सारा नीचे फाइबर आपको मिल जाता है। दैट इज नोन एज पल्प, मैकेनिकल पल्प। दैट इज 100%, जितना आइडली वी कैन से जितना लॉग ऑफ वुड उसके पास लेके गए थे उतना ही हमें पल्प मिल गया। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उसमें लिग्निन भी आ गया। एज आई हैव सेड, लिग्निन इज ए कलरिंग कंपाउंड, तो आपको वाइट पेपर कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो न्यूज़ प्रिंट है जो आजकल तो न्यूज़ पेपर साफ पेपर, वाइट पेपर के बन के आ रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी अखबार ऐसे हैं जो आपको ब्राउनिश मिलेंगे। आपने एंड ऑफ द टॉक मुझे बताना है कौन सा सर अभी भी ब्राउनिश टच अखबार आ रहा है मार्केट में। ओके, तो अब दूसरा मेथड मैं बताऊं, केमिकल मेथड है विद द यूज ऑफ केमिकल्स। कौन से केमिकल्स, आगे फिर इसकी टाइप्स हैं। अल्केलाइन, एसिडिक। हमें पता है, हम केमिकल इंजीनियर हैं, केमिस्ट हैं, कि अल्केलाइन पल्पिंग में पीएच अल्केलाइन यूज होती है, अल्केलाइन के जो केमिकल्स हैं अल्कली है वो यूज होती है। वेयर इज इन एसिड सम सल्फाइड्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन अल्केलाइन पल्पिंग। अल्केलाइन पल्पिंग भी आगे दो टाइप की है, वन इज क्राफ्ट पल्पिंग, अनदर इज सोडा पल्पिंग। मैं यहीं तक सीमित रखूंगा आपको कि क्राफ्ट पल्पिंग और सोडा पल्पिंग में क्या डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री इन इंडियन सिनेरियो, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सोडा बेस्ड एंड क्राफ्ट बेस्ड। सोडा
इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आप नमक डालते हैं उसमें मिर्ची डालते हैं, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना के ना इसमें डाल दिया जाता है डाइजेस्टर में। ऊपर का एरो देख रहे हो उसमें NaOH एंड Na2S लिखा है, स्टीम एंड वाटर। Na2S जब Na2S यूज करना है, जब सोडियम सल्फाइड यूज करना है, तो उस अलॉन्ग विद NaOH उस प्रोसेस को हम सल्फेट पल्पिंग कहते हैं या क्राफ्ट पल्पिंग कहते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस। तो पल्पिंग में करते क्या है, जब आप आलू को उसमें डाल देते हैं, 5 मिनट 2 सीटी बजती है, 3 सीटी बजती है, उसके बाद आलू की सब्जी बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको सफिशिएंट प्रेशर टेम्परेचर देना होता है, टाइम देना होता है। कितना टाइम? ये टाइम लगता है 3 घंटे, और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिजायर्ड केमिकल्स आपने डाल देने हैं उस कुकर के अंदर, वुड चिप्स डाल देने हैं, पानी डाल देना है और स्टीम दे देनी है। इंडस्ट्री में यहाँ तो गैस से हीटिंग करते हैं, इंडस्ट्री में स्टीम से हीटिंग होती है, डायरेक्ट हीटिंग एंड इनडायरेक्ट हीटिंग। तो इसमें इनडायरेक्ट हीटिंग लगाते हैं। तो इसका मतलब है मेरा कुकर है, यदि इनडायरेक्ट हीटिंग देनी है तो मेरा कुकर या डाइजेस्टर इज ए टाइप ऑफ वेसल विच हैव दिस अरेंजमेंट। तो जेक्टेड वेसल यूज करते हैं। इसमें ओपन स्टीम भी देते हैं डाइजेस्टर को, लेकिन इनडायरेक्ट हीटिंग से ही आप टेम्परेचर अचीव कर पाते हो 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो पल्पिंग में 3 घंटे तक उसको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेशन में क्या होता है, चीजें सॉफ्ट हो जाती हैं, आलू सॉफ्ट हो जाता है जब बना लेते हो। पहले हार्ड था, अब सॉफ्ट हो गया, विच इज डाइजेस्टेबल। उसको हाथ से भी दबाओगे तो पल्प सा बन जाता है। सिमिलरली हियर, इस पल्पर में, इस डाइजेस्टर में, इस कुकर में भी 3-4 घंटे के बाद वो आपका मटेरियल है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट क्यों हो जाता है? जो केमिकल्स है ना, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो जाके लिग्निन को अटैक करता है। लिग्निन को अटैक करके उसको सॉल्बलाइज कर देता है अल्कली के अंदर। जब लिग्निन निकल गया तो सॉफ्ट हो गया मटेरियल, सॉफ्ट हो गया तो इंडिविजुअल फाइबर बनते हैं, आगे ब्लो डाउन करते हैं। जब इसके अंदर इतना हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड जब बनाते हैं उसको, जब फिर नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे हम ना उस वेसल को, उस कुकर को खोल देते हैं तो सारे फाइबर इंडिविजुअल फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारा पर्पस क्या था केमिकल पल्पिंग का? प्राइमरी फंक्शन पर्पस इज टू गेट द इंडिविजुअल फाइबर्स बाय रिमूविंग लिग्निन। लेकिन ये लिग्निन ना, मैंने बताया कि इंटरलेयर्स के अंदर जुड़ा होता है। तो इसमें यदि आप ज़्यादा केमिकल यूज कर लोगे ना तो लिग्निन तो सारा निकल आएगा, लेकिन हेमीसेलुलोज का पार्ट और सेलुलोज का पार्ट भी डिग्रेड हो जाता है, विच इज अनरिक्वायर्ड। तो आपका यील्ड कम हो जाएगा पल्प का। केमिकल पल्पिंग का यील्ड 50% है, सिर्फ 55%। मतलब 100 किलो वुड डाली, 55 किलो ही आपको मिलेगा पल्प, क्योंकि 20-25 किलो तो लिग्निन निकल जाएगा, एक्सट्रैक्टिव भी निकल जाएंगे, तो कुछ सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का भी पार्ट वहां पे लॉस हो जाता है। तो इसके बाद अब हमें पता है वो पानी को अलग करना है हमने। जो पहले जो केमिकल्स डाले थे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो व्हाइट सा ही लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड रहता है, इसीलिए इस लिक्विड को नाम दे दिएगा व्हाइट लिक्विड। लेकिन जब डाइजेशन हो जाती है उसके बाद लिक्विड का रंग बिल्कुल काला हो जाता है, उसको ब्लैक लिक्विड कहते हैं। उसमें क्यों काला हो गया? क्योंकि लिग्निन आ गया, सॉल्बलाइज हो गया। वो कहाँ हम फिर सेपरेट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप इसी में लिखा है पल्पिंग एंड वॉशिंग। तो हम वॉशर यूज करते हैं। आपने केमिकल इंजीनियर हैं तो आपने वॉशर पढ़े होंगे, ड्रम वॉशर, वैक्यूम फिल्टर पढ़े होंगे, ड्रम टाइप। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ वॉशर लगाते हैं जिसमें पानी ऊपर से स्प्रे होता है, अंदर वैक्यूम लगा होता है और वो घूमता है एट देयर ओन एक्सिस। तो आपका ऊपर से साफ पानी उसके गिर रहा है तो मैट बन जाता है, मैट को पानी से साफ करते हैं, जब स्प्रे करते हैं उसके ऊपर अंदर पानी सक कर लिया जाता है और ऊपर मैट बन जाता है जो कि डॉक्टर प्लेट से अलग कर लिया जाता है। तो आपका वॉशिंग कर लीजिए, जैसे घर में आप कपड़ा धोते हैं ऐसे ही उस पल को वॉश कर लिया जाता है ऑन द वॉशर्स। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च है, वॉशर के ऊपर ही रिसर्च कर लो, पल्पिंग में रिसर्च कर लो। आजकल अपडेट्स क्या हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है इंडस्ट्री में, कि जितना लिग्निन ज़्यादा रिमूव हो, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और मेरा प्रोडक्ट लॉस कम हो,
ये ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए कुछ ऐसे केमिकल यूज हो रहे हैं जो कि जैसे कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, उसको ऑर्गेनोस्लोव पल्पिंग कहते हैं। नहीं तो एक अनदर केमिकल यूज हो रहा है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही डाल दिया जाता है, एंथ्रोक्विनोन। एंथ्रोक्विनोन भी एक्सटेंडेड डी लिग्निफाई कर देता है। अब पल्पिंग के बाद भी ना 4-5% लिग्निन उसमें रह जाता है। भाई लिग्निन यदि रह गया तो वो कलर्ड कंपाउंड है, तो आपके पल्प का रंग होगा। तो यदि रंग होगा उसमें, लेकिन पेपर तो हमने व्हाइट बनाना है, तो पल्प हमें डी कलराइज करना पड़ेगा, उसका कलर है जो उसको खत्म करना पड़ेगा। देयर इज वन प्रॉपर्टी आफ्टर पल्पिंग, उसका एक नंबर चेक करते हैं जिसको हम कापा नंबर कहते हैं, KAPPA, कापा नंबर। कापा नंबर क्या बताता है कि उसमें लिग्निन कितना रह गया। तो जितना ज्यादा लिग्निन रह गया उतना ही हमारा पल्प है जो इन कंपैरिजन टू दैट सेंस हम कहेंगे कि ये यार लो क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ कलर क्वालिटी। फिर हमें उसको भी रिमूव करना है। आप पूछ सकते हैं सर सारा लिग्निन क्यों नहीं रिमूव होता, वो बता दिया मैंने आंसर। आप ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे, सोडियम सल्फाइड यूज करोगे, टेम्परेचर ज्यादा लगा दोगे, ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए डाइजेस्टर चला दोगे, तो फिर लॉस है, आपके प्रोडक्ट का लॉस हो जाएगा। पीलिंग रिएक्शन होता है अंदर ही। चलो वो नहीं मैं जाऊंगा केमिस्ट्री में। उसके बाद ना जो आपके पास पल्प आया उसको हम नाम बोलते हैं अनब्लीच्ड पल्प। अनब्लीच्ड पल्प, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप शुड बी ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग इटसेल्फ बता रहा है भाई रंग को खत्म करना, ब्लीच कर देना। कैसे ब्लीच करना है, ये ब्लीचिंग ध्यान से सुनिएगा जो मैं बातें बता रहा हूं। जो ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग इज ए मल्टी स्टेप प्रोसीजर, इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप। ऐसा नहीं है कि एक केमिकल डाल देंगे उस पल्प के अंदर और सारा रंग निकल जाएगा और व्हाइट पल्प मिल जाएगा। नो, इट इज ए मल्टी स्टेप, नॉट ए सिंगल स्टेप। मल्टी स्टेप का इसका मतलब नहीं एक स्टेप है जो दो, इसमें 3-4-5 स्टेप रहते हैं इसके अंदर। तो क्लोरीन इज अच्छा। अब ये ब्लीचिंग है ना, आप ब्लीचिंग एजेंट होंगे, केमिकल होंगे, तो मैं थोड़े बोलूंगा इसके ऊपर। तो ब्लीचिंग एजेंट नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना जो वो यूज होते हैं, जो रेजिडुअल लिग्निन को खत्म कर दें, उसके साथ रिएक्ट करने और उसके बाद हमारे पल्प की ब्राइटनेस भी बढ़ा दें। दैट्स व्हाई इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसीजर। तो क्लोरीन है ना वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम कॉस्ट वाला केमिकल है जो एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। लेकिन व्हेन यू विल रिएक्ट ब्लीच क्लोरीन और विद द ऑर्गेनिक मास, पल्प इज ऑर्गेनिक मास, उसके साथ जब मिलाते हो ना तो लिग्निन तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन उस पानी के अंदर इतने खतरनाक कंपाउंड्स पैदा होते हैं जिसको हम क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, क्लोरो लिग्निन कंपाउंड्स कहते हैं। क्योंकि ये जब आप ब्लीचिंग के बाद वॉशिंग करते हो ना पल्प की, वाइट पल्प जब मिलता है तो आप वॉशिंग करते हो फिर अगेन, वो वॉशिंग में जो लिक्विड निकल के आता है ना, दैट कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक्स। वो जो आपके एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हैं, एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में उन कंपाउंड्स को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में क्लोरीन हैज बीन बैंड, एलिमेंटल क्लोरीन जिसको कहते हैं, Cl2 यूज होती थी गैस, पूरी बैन हो रही है। लेकिन हमारा देश महान है, स्टिल द इंडस्ट्रीज आर लुका छुपी यूज हो रही हैं क्लोरीन। फिर रिसर्च आई कि भाई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन यूज करो। यदि क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज कर लोगे ना क्लोरीन की साइड पे, if you will use chlorine dioxide in place of chlorine, then the compounds which are generated during bleaching, which are very difficult, very carcinogenic, toxic, उनका quantity कम हो जाएगा। That's why if you will see there is a one arrow which is written Cl2, ClO2, H2O2 और NaOH। NaOH तो वॉशिंग में यूज होता है, अल्कली एक्सट्रैक्शन करते हैं वहाँ उसके। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए वेरी गुड ऑक्सीडेंट। भाई क्लोरीन कंपाउंड तो यूज ही ना करो। बलारपुर इंडस्ट्री का यदि आप क्लासमेट का रजिस्टर यूज करते हो ना, इसका एंड वाला पेज निकालो, एंड वाले पेज पे वहां लिखा होता है एलिमेंटल क्लोरीन फ्री पेपर, एलिमेंटल क्लोरीन फ्री पेपर। इसका भाव क्या है? इसका भाव है कि एलिमेंटल क्लोरीन नहीं यूज हुई ड्यूरिंग ब्लीचिंग ऑफ दिस पल्प।
पर इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो एजेंसीज हैं, ईपीए है, वो कहती है कि क्लोरीन यूज ही ना करो, अदर ऑक्सीडेंट यूज कर सकते हो, जैसे ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंजाइम ब्लीचिंग भी यूज होती है, एंजाइम्स के साथ ब्लीचिंग की जाती है, वो बहुत ही सेफ है। लेकिन ईच प्रोसेस है डिसएडवांटेजेस एंड इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं। भाई क्लोरीन तो बहुत सस्ती है, ऐसे यूज करते हैं लोग। अब ओजोन पहले प्रोड्यूस करोगे, ओजोन की कॉस्ट इन्वॉल्व है, पेपर कहाँ महंगा बेच सकते हो आप भाई। एंड ऑब्जेक्टिव तो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का, केमिकल इंजीनियर का, या किसी भी इंजीनियरिंग का जब बात होती है तो एंड पे सबसे सारी बात इकोनॉमिक्स पे खड़ी हो जाती है कि वेदर योर प्रोडक्ट इज सेलेबल, दैट कैन बी सेलेबल इफ इट इज ऑफ लो कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट कम होगी तभी तो बिकेगा। चलो, सो ब्लीचिंग मैंने बताया कि इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसीजर। एफुलेंट के स्टैंडर्ड देखो नीचे दिया हुआ है, कर एफुलेंट 30 मीटर के ऊपर टन, इसका मतलब हाई कलर, हाई सीओडी, हाई बीओडी, हाई टीओसी, हाई एओएक्स, एडजॉरेबल ऑर्गेनिक हैलोजेंस यहाँ जनरेट होते हैं, यहाँ फ्यूरेन जनरेट होती है, यहाँ सिरिंजल्डिहाइड्स जनरेट हो जाते हैं जब ब्लीचिंग करते हैं पल्प। बहुत डिफिकल्ट है इसका एफुलेंट का। हाई पोल्यूशन लोड इंडस्ट्री बोला जाता है तभी पल्प एंड पेपर मिल को हाई पोल्यूशन लोड इंडस्ट्री है। हमने बहुत काम किया इसके। तो अब जो आफ्टर ब्लीचिंग आपको पल्प मिला ना, वो पल्प है साफ वाइट पल्प है। अब उसको हमने अब ऐसे सेक्शन में लेके जाना है जहाँ पे उसकी हम प्रॉपर्टीज इनहेंस कर पाए। भाई सिगरेट पेपर बनाना है तो पोरोसिटी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वैसा हम यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। मैकेनिकल ट्रीटमेंट को रिफाइनिंग कहते हैं, बीटिंग एंड रिफाइनिंग। पल्प को बीट किया जाता है, मारा जाता है, ताकि पल्प के जो फाइबर्स है ना वो सीधे हो जाए। फाइबर सीधे रहेंगे तो स्ट्रेंथ अच्छी आ जाएगी फाइबर में, पेपर में। छोटा छोटा बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे सारा दिन लग जाएगा बताने। फिर आपको कलर पेपर चाहिए, डाइज डाल दो, यहाँ डिफरेंट कलर में लाए जाते हैं। भाई जो आपका पेपर है वो पानी को सोखे ना, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर, तो वी विल डेफिनेटली मेक ए ट्रीटमेंट कि इसके ऊपर किसी की कोटिंग कर देंगे। तो हाँ जी बेटे बोलो, यदि कोई डाउट है तो, कोई बोलना चाहता है तो। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो। सो साइजिंग एजेंट्स डाल दिए जाते हैं। यहाँ आप कई पेपर देखोगे, आप ऐसी क्वालिटी का पेपर होता है उसमें थोड़ा सा ही खींचो फट जाता है, इसका मतलब उसमें फिलर्स ज्यादा डाल दिए, टेल्कम पाउडर यूज होता है यहाँ, ठीक है, डाला जाता है। तो ऐसे ही पल्प को तैयार कर लिया जाता है। द लास्ट पोर्शन इज द पेपर मशीन। अब मैं थोड़ा सा यहीं पे दिखाता हूँ ये सेक्शन सारे, फिर पेपर मशीन का सेक्शन एक्सप्लेन करूंगा। ये भी एक और फ्लो शीट है, जस्ट देखिए, नहीं तो यहाँ आ जाइए। देखो केमिकल पल्पिंग डाइजेस्टर दिखाया है मैंने, ये सेकंड फिगर भी डाइजेस्टर की है। थर्ड फिगर ब्लैक लिक्विड सेपरेटेड फ्रॉम पल्प इन वॉशिंग। आप वॉश्ड पल्प देख लो और काला पानी का रंग देख लो। फिर नीचे थर्ड जो फिगर है ब्लीच प्लांट की है। ब्लीच प्लांट इज वेरी कम्प्लेक्स प्लांट। तो जो एंड वाली फोटो दिखाई हुई है, चिप्स हैं, पल्प आफ्टर कुकिंग है, मतलब पल्पिंग के बाद है। वॉश्ड पल्प का रंग कैसा है? ब्लीच पल्प देखो व्हाइट हो गया। ये व्हाइट पल्प की मैंने डायग्राम दिखाई। यदि आप वुड फाइबर देखोगे तो ये SCM लगाया है एक वुड फाइबर्स का, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया हुआ है। लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन। कुछ रिसर्च, इतनी रिसर्च है इस एरिया में जितनी आप करना चाहते हो। आई कैन गिव यू नंबर ऑफ टॉपिक्स। तो ये रिफाइनिंग है। एक मेरे को मिल गया कोई एनिमेटेड, मैंने दिखा दिया, रिफाइनिंग जस्ट टू मेक सम फन। भाई अच्छा पेपर मेकिंग दिखा रहा है। पेपर मेकिंग, ये देखो पेपर मेकिंग कैसे है। ये डब्बे में ना वो पल्प पानी में घोल दिया, फिर एक टूटी लगा दी, एक यहाँ मैश है जो रन कर रही है, तो उसके ऊपर वो शीट मैट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? पानी नीचे उतर जाएगा। मैश है जब, दिख रहा है? हाँ, मैं सेक्शन लेके आ रहा हूँ आपको, लास्ट सेक्शन, दैट इज पेपर मेकिंग, शीट मेकिंग आई शुड से, शीट मेकिंग। ये लेफ्ट हेड बॉक्स लिखा हुआ है,
ये वही बॉक्स है, ये जो यहाँ पे बॉक्स था पेपर मेकिंग जिसके ऊपर लिखा, ये वो बॉक्स है। अब ना यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन है, बैच ऑपरेशन में शीट नहीं बनती, सिर्फ हैंडमेड पेपर बनता है बैच में। इंडस्ट्री में सिर्फ ये एज ए कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन होता है। तो आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट रोल्स, वन इज डैंडी रोल, है ना, एक है काउच रोल, एक है ब्रेस्ट रोल। इसके रोल्स के बीच में काउच रोल या कूच रोल के बीच में और ब्रेस्ट रोल के बीच में ना एक बेल्ट चलती है विच इज मैश, बेल्ट चलती है विच इज मैश, एक जाली है, वो घूमती है हाई स्पीड पे, 400-500 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे घूमती है। तो इस हेड बॉक्स से बहुत ही पतली सी ओपनिंग होती है, बहुत ही थिन ओपनिंग होती है। इस थिन ओपनिंग से ना वो पल्प है जो उस मैश चलती भागती शीट के मैश के ऊपर डाल दिया जाता है। तो जो डैंडी रोल है, डैंडी होना चाहिए, डॉली लिखा है, चलो जो भी है, तो ये थोड़ा दबाता है तो पानी है जो बीच में से निकल के जाएगा और शीट आगे फेल्ट के ऊपर निकल जाएगी। अब आपको पता है जब शीट बन गई तो शीट को दबा दें तो थोड़ा बहुत पानी निकल जाएगा। दैट्स वाई द नेक्स्ट सेक्शन इज द प्रेसिंग सेक्शन। ये जो फेल्ट ड्रायर लिखा है यहाँ, इस सेक्शन को प्रेसिंग सेक्शन कहते हैं। दैट्स वाई इट इज नोन एज वेट प्रेस सेक्शन। यहाँ शीट थोड़ी सी ना गिल्ली होती है। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन है। अब देखिए कितना पतला पेपर चल रहा है उस शीट के ऊपर, फेल्ट के ऊपर, मे बी आधा mm थिक हो, उससे भी कम हो। कितना कितना सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन है। अब वेट प्रेस सेक्शन में थोड़ा सा ना उस शीट को प्रेशराइज कर दिया जाता है बाय द रोलिंग रोल, जो वाइट रोल दिखाए गए हैं, जो चल रहे हैं हाई स्पीड पे। ये कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन है, एक बार पल्प निकाल दिया शीट बन के निकलता है। उसके बाद अब हमें पता है भाई दबाने के बाद जो पानी निकल गया, लेकिन उसके बाद शीट तो हमें ड्राई चाहिए, तो हम ड्रायर में भेजते हैं। दीज आर द रोटरी ड्रायर्स, जो भी आपने केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, दीज आर द मास ट्रांसफर में पढ़े होंगे। रोटरी ड्रायर्स हैं वो, एक पूरी ट्रेन होती है ड्रायर्स में की। थर्ड फिगर देखिए आप, वो लड़का चढ़ा हुआ है, चेक करता रहता है कि भाई ड्रायर ठीक चल रहे हैं, हाई स्पीड के व्हील हैं, ये अंदर से इनकी स्टीम हीटिंग हुई होती है, तो इनके सरफेस से ड्राइंग ऑपरेशन होता है। सर जो आप ड्राइंग ऑपरेशन पढ़ते हो मास्टर, वो यहाँ हो रहा है। दैट्स वाई दिस नोन एज ड्रायर सेक्शन। अब जब शीट बन गई उसके बाद ना बहुत ही हाई सरफेस फिनिश्ड रोल्स के बीच में से उसको निकाल दिया जाता है शीट को, जो प्लेंडरिंग सेक्शन दिखाया आगे। उसमें क्या होता है, जैसे कपड़े की प्रेस कर लेते हो ना आप, कितना स्मूथ हो जाता है, ऐसे ही इस पेपर शीट को भी हाई सरफेस फिनिश के जो रोल हैं, जो हीटेड रोल्स हैं, उनमें से पास कर दिया जाता है, तो आपको पेपर है जो स्मूथ मिल जाता है। इसको ऑपरेशन को कैलेंडरिंग कहते हैं। तो मैंने लास्ट की जो 2 फिगर लगाई हैं नीचे, ये ड्रायर सेक्शन की लगाई हुई हैं, पेपर मशीन की लगाई हुई हैं। उसके बाद एंड पे रील दिखाई हुई है, पेपर लीविंग द मशीन इज रोल्ड ऑन टू रील। जैसे रील हम इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो पेपर ऐसे रोल होता रहता है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। ऐसे ही ये दिखाया गया है, जस्ट मेक ए फन ऑफ दिस फिगर। पेपर शीट बन रही है, पेपर शीट रोल हो रही है। ड्रायर्स का एक अनदर व्यू है। ये जो कलर्ड राउंड सिलेंडर हैं, ये हॉट सिलेंडर्स हैं ड्रायर के। तो ये बहुत ही एक्चुअल पिक्चर है इंडस्ट्री से, व्यू ऑफ सिंगल ड्रायर। आप देख रहे हो व्हाइट ही शीट, उसके नीचे ब्लैक सी शीट चल रही है, दिस इज नोन एज पैड। ये कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, 20-30 ड्रायर लगे रहते हैं ऐसे। फिर ये लास्ट सेक्शन है, ऐसे जब पेपर रोल हो गया, वो नीचे पेपर रोल हो रहा है जहाँ सेकंड पर्सन है, तो ये फिर रोल को ले लिया जाता है। आगे का सेक्शन कटिंग है ना, उसको फिर किस फॉर्म में काटना है, A1 में काटना है, A2 में काटना है, A3 में काटना है, A4। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, सो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ ओवर हियर। आई एम वेलकमिंग the queries. Thank you. Participants, please ask few queries if you have. Am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Okay. So please, participants can ask the questions.
Good afternoon, sir. Good afternoon. सर अभी आजकल आप सर कौन सी एरिया में पल्प एंड पेपर में काम कर रहे हैं सर? विच एरिया यू आर वर्किंग और रिसर्चिंग इन द पल्प एंड पेपर? We are working in the waste treatment of pulp and paper mill. And my few students are working in the